बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब अच्छा है? सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. So in this chapter, which is given in your book, chapter number 12, this chapter is purely based on electricity and what are the topics that we are going to cover under this chapter. And they are electricity, electric cell, electric current, electric bulb, electric connections, and the last one is electric torch. So after seeing what is electricity, what is electricity children? It is a form of energy which helps the electrical appliances to work. Fine, जैसे एक मेरे पास है देखो, see the torch is now, glowing. So can you see the torch is glowing? So after seeing, so what is there inside my torch? Inside my torch, children, if I open this torch, I will find, if I open my torch, I will find a cell inside it. Fine? Let's take a cell. This is very common cell and this is also very common cell. I have two cells. So let's keep the cell with us. Cell अपने साथ रखेंगे and then we'll learn what is cell. So what is a cell or what is an electric cell? It is a device. ये एक तरह की device होती है. It is a device which is used to change the chemical energy. अब इसके अंदर क्या fill है बच्चों? इसके अंदर एक chemical filled है, ठीक है? That chemical energy into electricity. जैसे ही आप इसको जैसे ही आप अपने सेल को अपने टॉर्च पे डालेंगे, अपने सेल को आप ट्रांजिस्टर में डालेंगे या आप कैलकुलेटर में डालेंगे, तो क्या होगा? आपका कैलकुलेटर चलने लगेगा. तो चलने कैसे लगता है? What is there inside the cell that makes your appliances to run? चलते कैसे हैं? Because of the chemical filled inside. इसके अंदर भी केमिकल है, ठीक है? So what is electric cell? It is a device used to change the chemical energy into electricity. ठीक, जादू नहीं होता इसके अंदर. It is a chemical filled. ठीक, धीरे करके वो केमिकल खत्म हो जाता है कंटिन्यूअसली जब आप यूज करते हैं एंड आप कहते हैं सेल खत्म हो गया. सेल कैसे खत्म हो गया? द केमिकल विच इज इनसाइड द सेल इज फिनिश्ड. सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन. बना कैसे है? तो कैन यू सी द शेप? So children, can you see the shape of the cell? It is cylindrical in shape. आप कोई भी सेल ले लें. Generally 2 cell I have. So generally जो cells होते हैं इसे हम dry cell कहते हैं. Why dry cell? It is commonly known as dry cell. Dry doesn't mean कि ये dry है, नहीं. It is known as dry cell. Fine. So जो dry cells जो होते हैं, like I have 2 cells with me. So can you see that both are cylindrical in shape? Cylinder जैसा shape है ना? So first is they are cylindrical in shape. Now a metal cap on the top. आप देखो इसके पास से, can you see that there is a metallic cap? Children, can you see that there is a metallic cap? दिख रहा है आपको metallic cap? Fine. Can you see the metallic cap on the top? There is a metallic cap on the top and the metal disc. Disc means जो base है. So जो ऊपर का टॉप है वो भी metallic टॉप है. ये देखो, see this metallic टॉप दिख रहा है ना? ये मेटालिक टॉप है और इसे हम कहते हैं मेटालिक कैप. जिसमें से छोटी सी कैप लगी, इट इज नोन एज मेटालिक कैप. फाइन. दिस इज मेटालिक कैप ऑन वन साइड एंड मेटालिक डिस्क ऑन अदर साइड. देखो, सी दिस इज कैप, दिस इज कैप चिल्ड्रन. ये छोटी सी लगी है, दिस इज कॉल्ड मेटालिक कैप एंड दिस इज कॉल्ड मेटालिक डिस्क. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. सेकेंडली इट कंटेन्स अ मेटालिक कैप ऑन वन साइड एंड मेटालिक डिस्क ऑन अदर साइड. थर्ड, अगर आप इसे ओपन करें, सी दिस डायग्राम. नाउ इफ यू ओपन दिस, अ केमिकल पेस्ट इज फिल्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. कैन यू सी दिस डायग्राम? So can you see here children what is filled inside? A chemical paste that is called electrolyte. यही electrolyte जो होता है बच्चे, ये burn होता है और electricity आपको provide करता है, या electrical appliances आपके run होते हैं because of the presence of this chemical. ठीक. Next, can you see one more thing? There is a black rod.
black rod which is present in the middle, and this black rod is nothing but a carbon rod. अगर आप इसको पकड़ो तो आपको देखोगे तो आपका हाथ ब्लैक ब्लैक काला काला हो जाएगा. तो किसकी बनी है? ये कार्बन की बनी है. इट इज अ कार्बन रॉड. फाइन. सो इट इज अ कार्बन रॉड. सो इट कंटेन्स ब्लैक कार्बन रॉड. और इसकी खास बात क्या होती है? जो ये कार्बन रॉड है बच्चा, इसका एक एंड जो है वो मेटेलिक टॉप को टच करता है, जो कैप है, और जो दूसरा एंड है वो डिस्क को टच करता है. आपने देखा होगा ना, हम 2 सेल कैसे डालते हैं? हम 2 सेल जब भी कहीं में डालते हैं तो हमेशा एक टॉप आगे रहेगा, फिर बेस रहेगा, फिर टॉप रहेगा, फिर बेस रहेगा, ऐसे डालते हैं ना. हिस्सा एक नीचे का हिस्सा है, तो जो ऊपर का हिस्सा है बेटा वो किसको टच करेगा? वो कैप को टच कर रहा है, एंड दैट इज द पॉजिटिव साइड. सो ऊपर की साइड पॉजिटिव है और नीचे का हिस्सा जो है वो बेस को टच कर रहा है, दैट इज अ नेगेटिव साइड. सो हैव यू सीन दैट द सेल हैज 2 एंड्स, वन पॉजिटिव एंड, अदर इज नेगेटिव एंड. सो इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करती है तो कैसे मूव करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक. मेटल मीन्स धातु जिससे चीजें बनती हैं. जो आपके सेल्स होते हैं बेटा, दे आर जनरली मेड अप ऑफ जिंक मेटल. जिंक धातु के बने होते हैं. जैसे अलग अलग धातु होती है ना, अलग अलग मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट. ये जो नाम मैं ले रही हूँ ये सब क्या है? ये सब मेटल्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. जैसे कॉपर भी एक मेटल है जिसकी वायरिंग होती है. गोल्ड हम पहनते हैं, सिल्वर हम पहनते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो आपका बल्ब है, ऐसे ही बेटा जो आपका सेल है ये जिंक से बना होता है. ये जिंक मेटल से बना होता है. स्पेलिंग ऑफ जिंक इज ZINC, जिंक, और इसका सिंबल होता है Zn. सो दिस इज मेड अप ऑफ दिस बल्ब. सो दिस सेल इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल. ये जिंक धातु का होता है. जो दिख रही ना आपको चमकता हुआ दिख रहा है. सो दिस इज मेड अप ऑफ जिंक. सीइंग द इलेक्ट्रिक सेल. क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल? ये जानना जरूरी है. इलेक्ट्रिक सेल वर्क कैसे करता है? हाउ द इलेक्ट्रिक सेल वर्क. सो फटाफट पेंसिल लेके मेरे साथ बैठो एंड विल ड्रॉ अ स्मॉल सर्किट डायग्राम विच शोज कि इलेक्ट्रिक सेल, हाउ इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स. इलेक्ट्रिक सेल वर्क कैसे करता है? ठीक है. तो हमने क्या बनाया? ये जी क्या बनाया? दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम मीन्स जैसे आप अपने घर का नक्शा बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले एक नक्शा बनता है. ठीक है. नक्शा बनाते हैं. ठीक है. और उसका मैप बनाते हैं. तो जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मैप बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. जो ये दिखाता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा. ठीक है. सो लेट्स सी दिस स्मॉल सर्किट डायग्राम. तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट हमको बताता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. सो पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो चलो कैसे देखो सेल कैसे वर्क करता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम स्विच ऑन करेंगे. व्हेन वी स्विच ऑन तो क्या होगा? जो सेल होगा उसके अंदर जो केमिकल फील्ड होगा वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. वो क्या करेगा? दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. ठीक. जैसे रोज आप बल्ब जलाएंगे जलाएंगे जलाएंगे. अ टाइम कम्स जब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, वो टोटली फिनिश हो जाएगा. व्हेन इट फिनिशेस तो क्या हो जाएगा? बल्ब विल नॉट ग्लो. और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो ऐसे सेल को हम कहते हैं डेड सेल. So if I ask you what is a dead cell? So a dead cell is a cell in which the chemical energy is totally used up. Means डेड सेल वो सेल है जिसके अंदर की केमिकल एनर्जी पूरी तरह से यूटिलाइज कर ली गई है. ठीक है. किसमें? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो डेड सेल इज अ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी इज टोटली यूज्ड अप in electricity. Fine. So in this way the electric cell works. Okay. Now let's see this. What are these called? These are electric wires. ये क्या है? वायर्स है. एक एंड इनका सेल के एक तरफ, दूसरा एंड इनका सेल के दूसरी तरफ. दिस इज ऑल्सो बल्ब. ये आपका सेल है. ठीक.